Students, today we'll discuss the reaction that is ozonolysis. The ozonolysis reaction जो है बेटा it occurs in alkenes, alkynes, benzene. It occurs in you can say many of the compounds. Out of this, today we'll discuss the ozonolysis of alkenes. So इसको ध्यान रखिए, ओजोनलिसिस आज हम सिर्फ अल्कीन का डिस्कस करेंगे, बी क्लियर। और वैसे मैं आपको बता दूं ये वहाँ पॉसिबल है जहाँ पर आपका अनसेचुरेशन है, डबल बॉन्ड है, ट्रिपल बॉन्ड है, वहाँ पर ये पॉसिबल है। सो टुडेज लेक्चर इज ओजोनलिसिस ऑफ अल्कीन। पहले थ्योरेटिकल पार्ट देखते हैं। द थ्योरेटिकल पार्ट इज ओजोनलिसिस मीन्स addition of ozone on alkene. First what I have done the addition of ozone on alkene to get ozonite. Now this ozonite undergo reductive cleavage. Very important point, इसको ध्यान करना है। This is reductive cleavage, and for reductive cleavage we will use zinc plus H2O. Clear? We can also use hydrogen, but today we'll discuss with the zinc and water. You can also use hydrogen in presence of palladium, doesn't make any difference. ठीक है, but most of the cases zinc plus water use करते हैं. So what I will get? I will get aldehyde or ketone or mixture of both aldehyde and ketone. So theoretically थोड़ा आपको क्लियर होगा what is the, you can say, the ozonolysis, addition of ozone on the alkene to give you the ozonite. This ozonite on a reductive cleavage gives you aldehyde or ketone or mixture of both. So before I start the lecture student, just थोड़ा हम common name study करते हैं for aldehyde and ketone so that it will be easy to understand. Common, ये काफ़ी important है. Common names ऑफ एल्डिहाइड्स। पहले एल्डिहाइड्स का डिस्कस करते हैं। सो फर्स्ट एल्डिहाइड है आपका HCHO, सेकेंड एल्डिहाइड इज CH3CHO, सेकेंड में एक और ऐड कर दीजिए CH3CH2CHO, नेक्स्ट CH3CH2CH2CHO, और अगर आप बेंजीन पे CHO को अटैच करेंगे देन दिस विल बी द केस। सो वन कार्बन aldehyde in common name it is formaldehyde, whereas 2 carbon aldehyde it is acetaldehyde, 3 carbon aldehyde propion aldehyde, 4 carbon aldehyde butyl aldehyde, whereas I will attach the aldehyde group on benzene. इसका common name as well as IUPAC name both are benzaldehyde. चलिए अब common name हो गया, थोड़ा IUPAC भी देख लेते हैं. I will write, अगर हमें IUPAC करना हो then what are the IUPAC name? So 1 carbon के लिए we will write meth, single bond N, al aldehyde group के लिए. This is 2 carbon atom, I will write ethanol, 3 carbon atom propanol, 4 carbon atom butanol, और बेंजीन के केस में बेंजल्डिहाइड, बट यू कैन, अगर क्वेश्चन गिवन हो तो बेंजीन अल भी सेम चीज़ है, बट दिस इज मोस्ट कॉमन एक्सेप्टेड नेम. सो ये हमने किया रिगार्डिंग द एल्डिहाइड. चलिए नाउ विल डिस्कस अबाउट द कीटोन आल्सो, सो दैट ड्यूरिंग द न्यूमेरिकल पार्ट और यू कैन से द कंसेप्चुअल पार्ट वी डोंट फेस एनी ऑफ द प्रॉब्लम. So common names of ketones. So first CH3COCH3, then CH3CO, we can also write CH2CH3, इस तरह भी कर सकते हैं. फिर बेंजीन पे if I will attach COCH3, then one more case is there, benzene पे COC6H5. now common name, ये दो ग्रुप देखिए बेटा, दोनों मिथाइल है, सो इट इज डाई मिथाइल कीटोन, और इसका एक कॉमन नेम और पॉपुलर है, दैट इज एसीटोन. दिस इज ऑल्सो वन ऑफ द मोस्ट कॉमन पॉपुलर नेम for dimethyl
कीटोन। नाउ इसमें नेक्स्ट इथाइल और मिथाइल दो ग्रुप हैं, ये इथाइल और ये मिथाइल। तो अल्फ़ाबेटिकली पहले इथाइल आएगा, सो इथाइल देन मिथाइल देन कीटोन। इसका जो पॉपुलर नेम है, वैसे अगर आप लिखना चाहो तो ये आपको पता है मिथाइल ग्रुप है और ये आपका फिनाइल है, सो वी कैन राइट मिथाइल फिनाइल कीटोन। बट वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर नेम इट इज, अगर बेंजीन पे आप COCH3 ग्रुप लगाओ, दिस ग्रुप इज सेड टू बी एसीटो CH3CO, सो एसीटोफिनोन इज मोस्ट पॉपुलर नेम। सिमिलरली अगर यहाँ बात करें, ये भी फिनाइल ग्रुप है, ये भी फिनाइल ग्रुप है, सो आई कैन राइट डाई फिनाइल कीटोन। बट उससे भी ज़्यादा पॉपुलर जो है, ठीक है, C6H5CO, दिस ग्रुप इज सेड टू बी benzo, so I can also note it down as benzophenone. Clear? So ये common name IUPAC you can, चलिए we'll discuss in one or two case. क्योंकि बेसिकली डीलिंग हमें यहाँ पे एल्डिहाइड कीटोन से करनी है, CH3CO CH2 CH3, दिस इज द चेन। नाउ 1 2 3 4, फंक्शनल ग्रुप को यहाँ से कम नंबर मिला है, सो ब्यूटेन 2 ऑन। इज दैट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? ठीक है ना। सिमिलरली अगर आपने बेंजीन पे अटैच किया COCH3, अब ये आपकी बेंजीन की साइड चेन है। क्लियर टू ऑल ऑफ यू? ठीक है। एंड दिस साइड चेन यू कैन से इज सब्स्टिट्यूटेड। तो ये जो आपका बेंजीन रिंग है, इट विल एक्ट एज सब्स्टिट्यूएंट, और इसको हम क्या लिखेंगे? फिनाइल। तो ये आपकी कितने कार्बन की चेन? 1 2। सो 1 पे कौन सा ग्रुप है बेटा आपका? 1 फिनाइल। 2 कार्बन के लिए वी विल राइट इथ, सिंगल बॉन्ड के लिए एन, और आपका फंक्शनल ग्रुप CO फर्स्ट पोजीशन पे है 1, और कीटोन के लिए आप क्या लिखते हो? ओन। सो इट इज 1 फिनाइल इथेन ओन। इस चीज को ध्यान रखना है, ठीक है। साइड चेन थी, सब्स्टिट्यूटेड थी, देयरफॉर हमने क्या लगाया यहाँ पे? बेंजीन को क्या ट्रीट किया हमने? एज अ सब्स्टिट्यूएंट ट्रीट किया, वेरी इंपॉर्टेंट। सो दिस वी हैव डन द IUPAC नेम। नाउ विल गो टू द मेन पार्ट, रिएक्शन। चलिए विल सी वन बाय वन, एग्जाम्पल से स्टडी करते हैं। सो फर्स्ट एग्जाम्पल वी विल टेक इथीन, CH2 डबल बॉन्ड CH2। इथीन का ओजोन लिसिस करते हैं, लेट्स सी व्हाट इज द रिजल्ट। सो इथीन प्लस ओजोन, व्हाट आई विल गेट। अब ओजोनाइड आप कैसे बनाओगे? देखिए, सबसे पहले आप डबल बॉन्ड हटा दीजिए। हमने डबल बॉन्ड हटा दिए, 1 ऑक्सीजन अबोव एंड 2 ऑक्सीजन बिलो आपको अटैच करने हैं। दिस इज द वे टू फॉर्म द ओजोनाइड। एक एग्जाम्पल और लेके चलते हैं साइमल्टेनियसली, वी विल डिस्कस वन मोर एग्जाम्पल। This we have taken ethene, CH3CH2, this is prop 1 in। चलिए इसमें भी स्टडी करते हैं। सो प्लस ओजोन, अगेन आपको डबल बॉन्ड हटाना है पहले, सो यू विल राइट CH3CH2, ऑक्सीजन 1 अबोव एंड 2 बिलो। सो ये हमारा बना स्टेप 1 में, वी विल गेट ozonide. Now this ozonide undergo reductive cleavage. For reductive cleavage I will use zinc plus water. Second step ध्यान रखना है, this is a reductive cleavage. सो यहाँ पर नाउ अंडरस्टैंड कि हम इस ओजोनाइड को कैसे क्लीव करेंगे। इट इज़ क्वाइट ईजी। सबसे पहले आपको अपर ऑक्सीजन को हटाना है, ये जिंक से कंबाइन करेगा, -ZnO। सेम हेयर, दिस अपर ऑक्सीजन कंबाइन विद जिंक, यू विल गेट -ZnO। नाउ फर्स्ट प्रोडक्ट ऐसे सर्कल बनाइए, CH2O। सेकेंड प्रोडक्ट प्लस CH2O। सेम हेयर, फर्स्ट सर्कल CH3CHO, प्लस सेकेंड इज CH2O। चलिए अब CH2O क्या है, मैं थोड़ा यहाँ पे मेंशन करके बता रहा हूँ।
फर्स्ट एल्डिहाइड हमने किया था HCHO फॉर्म एल्डिहाइड, दिस इज आल्सो रिटन एज CH2। तो फर्स्ट में जब मैंने इथिन का ओजोनलिसिस किया देन आई विल गेट 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ CH2O or I can write 2 molecules of HCHO, that is form aldehyde। सेम CH3CHO यहाँ पर acetaldehyde and CH2O is form aldehyde। So now we'll discuss the next case. These we have discussed 2 examples. Now the next one. CH3 CH3 double bond CH3 this is 2,3 dimethyl butene। चलिए अब इसका ओजोनलिसिस करते हैं। स्टेप 1 वी हैव टू ऐड ओजोन। सो डबल बॉन्ड हटाना है, नोट कीजिए पहले CH3 CH3 देन CH3 बेटा ये डबल बॉन्ड हट गया। अब ओजोन सेम वे से ऐड करना है, 1 ऑक्सीजन अबोव 2 ऑक्सीजन बिलो, दिस इज योर ओजोनाइड। नाउ दिस ओजोनाइड अंडरगो a reductive cleavage। reductive cleavage में we will use zinc plus water। तो you know what is formed, पहले ये ऑक्सीजन निकलेगा, जिंक से कंबाइन करेगा माइनस ZnO। सेकेंड प्रोडक्ट इज देखिए दिस वन एंड थर्ड प्रोडक्ट इज दिस वन। सेम सर्कल करना है जैसा आपने प्रीवियस केस में किया था। तो फर्स्ट मॉलिक्यूल इज CH3CO CH3 ध्यान से देखिए CH3CO ये O। जब बॉन्ड क्लीव होगा तो ऑक्सीजन के यहाँ पे डबल बॉन्ड आएगा। ये वैलेंसी के अकॉर्डिंग भी आप कंप्लीट कर सकते हो या वैसे भी समझ सकते हो। जब इस बॉन्ड और इस बॉन्ड को हमने क्लीव किया यहाँ से और यहाँ से, सो यहाँ पर डबल बॉन्ड बनेगा। सेकेंड मॉलिक्यूल इज ऑल्सो CH3CO सो आई विल गेट 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ एसीटोन। Okay, now we'll discuss one more case, that is the last one. CH3। Now this is now 2-methyl butene। Now we'll do the ozonolysis of this। तो स्टेप 1 ओजोन ऐड कीजिए। सेम मेथड है बेटा, डबल बॉन्ड हटाना है, मॉलिक्यूल नोट कीजिए CH3 CH3 same 1 oxygen here, 2 on the lower side, this is your ozonide। now this ozonide undergo same reductive cleavage in presence of zinc plus H2O। so you know what is formed, this oxygen and this zinc minus ZnO, this is the product CH3CHO, note it down CH3CHO, this is CH3COCH3, second CH3COCH3, this you know 2 carbon aldehyde, acetaldehyde, and this is acetone। clear? So student we have done 2-3 examples that are quite enough to understand the ozonolysis। और इसमें ध्यान क्या रखना है कि ozonolysis is so many of the types, और यहाँ पर जो क्लीवेज है वो भी ध्यान रखनी है। अभी हमने रिडक्टिव क्लीवेज करी है, ठीक है ना, यहाँ पर ऑक्सीडेटिव भी होता है जो नेक्स्ट वीडियो में होगा। बट अभी आपको स्टडी क्या करना है कि हमने ओजोनाइड की रिडक्टिव क्लीवेज को स्टडी किया है, ठीक है। चलिए नाउ विल स्टडी द नेक्स्ट वन इज इम्पॉर्टेंस और यू कैन से significance of ozonolysis। चलिए now students, so the significance of ozonolysis is, just see out, with the help of ozonolysis product की हेल्प से we can predict the structure of alkene
किसी भी अल्कीन का हम स्ट्रक्चर प्रिडिक्ट कर सकते हैं. सो दिस वी विल डिस्कस विद द हेल्प ऑफ सम क्वेश्चंस. So you can write the explanation as well as the question that an alkene on ozonolysis gives, first I will discuss two molecules of acetaldehyde predict the स्ट्रक्चर ऑफ अल्कीन. चलिए स्टडी करते हैं. तो फर्स्ट आपको टू मॉलिक्यूल ऑफ एसिटाल्डिहाइड ड्रॉ करने हैं. सो वी नो एसिटाल्डिहाइड CH3CHO, दिस इज एसिटाल्डिहाइड. सो इन मॉलिक्यूल्स को इस तरह से लिखिए कि जो ऑक्सीजन है वो बिल्कुल सामने आ जाए, दिस वे CH3CHO. क्लियर. और फिर आपको क्या करना है, देन सिंपली इन दोनों ऑक्सीजन को निकाल दीजिए. सो यू विल गेट योर अल्कीन CH3CH डबल बॉन्ड CH3, या यूं भी कह सकते हो कि ये जो बचा हुआ पार्ट है वो आपका अल्कीन है जब ये निकल जाएगा बीच में से, दिस वन एंड दिस वन. सो दिस इज नाउ 1 2 3 4 2 3 dimethyl but2ene. Clear. Chalo, now we'll discuss one more case here. Now an alkene on ozonolysis gives formaldehyde plus acetaldehyde. What is the structure of alkene? So you know that formaldehyde is HCHO, this is formaldehyde, and acetaldehyde is CH3CHO. अब इन दोनों को आप बिल्कुल इस तरह से लिखें कि ऑक्सीजन सामने आ जाए, HCHO, सेकेंड आई विल राइट CH3CHO. गॉट इट. नाउ सिंपली यू हैव टू रिमूव दिस ऑक्सीजन. ठीक है. और ये आपका अल्कीन HCH डबल बॉन्ड CH3. दिस इज, you can write like that, CH2 double bond CH3, that is prop 1 in. Chale, we'll discuss one more example. Now an alkene on ozonolysis gives acetone and acetaldehyde. Predict the structure of alkene. So you know acetone is CH3COCH3 and acetaldehyde is CH3CHO. सो इन दोनों को इस तरह से लिखे कि ऑक्सीजन बिल्कुल सामने आ जाए. सो एसीटोन CH3COCH3. ठीक है. नाउ एसिटाल्डिहाइड CH3CH और बेटा ये ऑक्सीजन. नाउ रिमूव दिस ऑक्सीजन, यू विल गेट योर अल्कीन CH3CH3 डबल बॉन्ड CH3. सो अगर आप नेमिंग करेंगे, दिस इज 1 2 3 4 2 मिथाइल but2ene. Clear. So this is the importance. You can say that with the help of the ozonolysis product we can predict the structure of alkene. So student, this is all about the topic. That's all.